Hi guys, welcome to Civils with Ankit. As you know, we are doing daily answer writing practice of GS4, which is ethics for UPSC and UPPSC. And today is question number 10 of our series. We are doing daily answer writing practice of currently 10 marker question, and this is again a 10 marker question. You pause my video, and this is the 10 marker question. This is the question. You take 7 minutes, pause my video and try to attempt this. We hope that you have attempted well, and if we were in the place of you, how we would have attempted this question. Let us see. The question is, the code of conduct and the code of ethics are the sources of guidance in the public administration, right? First of all, highlight these things: code of conduct and the code of ethics. There is a code of conduct already in operation. There is a 1964 code of conduct for civil servants, according to which the civil servant have to act, right? Where the code of ethics is not yet put in place. Why the code of ethics are not same for everyone? Why they are not implemented for the same all over the world? Why it is so? So this is the question. Suggest a suitable model for the code of ethics to maintain the integrity, probity and the transparency in the governance. Also, we have to suggest a model for this, how we can maintain integrity, probity and the transparency in the governance process through the ethics. So there should be the model for this. So this is the 10 marker question, right? We have to attempt this question in 150 words, which is round about 2 pages of UPSC paper sheet, right? So let us try to attempt this question. Right. First of all, we will like to discuss a context of this question. ये पूछ रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोड ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशन नहीं दे देनी चाहिए. कोड ऑफ conduct, this is our question number 10, right? Code of conduct, they are formal, enforceable codes. They are formal and enforceable codes also. They can be enforceable, which gives expected behavior of civil servant and also gives punishment if a civil servant unable to follow. अगर कोई भी सिविल सर्वेंट ने इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा. सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते लोगों को पता है अच्छी तरह से बात. दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देम. सो कंडक्ट ओनली सीक टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट. कंडक्ट्स आपको ये बताते हैं कि सिविल सर्वेंट को क्या नहीं करना है, उस चीज़ को रोकते हैं. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि कंडक्ट रूल्स हैं सिविल सर्वेंट के. कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964 फॉर द सिविल सर्वेंट्स, राइट? बट क्या केवल कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स ही है जो गाइडिंग लाइट की तरह गाइड करते हैं हम लोगों को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को? ऐसा नहीं है. इसके साथ साथ आपकी खुद की कंसाइंस क्या थी? आपकी अंतरात्मा की आवाज़. लॉज जो बाहर से जो सोसाइटी ने बनाए हैं, राइट? इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये भी तो गाइड करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को. सो नॉट ओनली कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आप एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिख सकते हैं, एंड code of ethics
are guideline for public administrator, but laws, rules, regulations, conscience also helps, right? फिर एक क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में पूछा था, वाई कोड ऑफ एथिक्स आर नॉट फ्रेम्ड। वाई, बिल्कुल क्वेश्चन से ही हेडिंग उठाएंगे, वाई कोड ऑफ एथिक्स आर नॉट फ्रेम्ड। हमें आंसर को ऐसे लिखना है कि वो क्वेश्चन से उसकी हेडिंग्स निकल के आनी चाहिए। क्यों अभी तक कोड ऑफ एथिक्स को फ्रेम नहीं किया गया, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट को तो फ्रेम कर दिया गया है कि आपने ये काम नहीं किया तो आप पे ये चार्जशीट लग जाएगी या फिर इस तरह से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। बट कोड ऑफ एथिक्स दे आर नॉट एनफोर्सेबल। वाई? बिकॉज दे हैव नो स्टैंडर्ड रूल्स। आप एक बात मुझे बताओ, डिफरेंट प्लेसेस पे, इवन हमारे इंडिया में तो मल्टी कल्चरलिज्म है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो कल्चर चेंज हो जाता है। साउथ इंडिया के कल्चर और नॉर्थ इंडिया के कल्चर में बड़ा अंतर है। तो जो साउथ इंडिया में एथोस होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में सेम एथोस हों उसके। तो कैसे हम वर्ल्ड वाइड एक ही एथोस पर उसके कोड्स बना सकते हैं? सो दिस इज़ द डिफ़िकल्टी, और इसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ में रिलेटिविज्म में है, रिलेशन में है। ज़रूरी नहीं जो एक कल्चर में सही हो वो दूसरे कल्चर में भी सही हो, राइट? सो मॉरल प्रिंसिपल एंड मॉरल वैल्यू चेंजेस फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम वाइल फ्रेमिंग द कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा नहीं है। सो हम लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये वजह है इसकी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म। उसी की वजह से इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन में हमको बोला था कि उसके लिए एक मॉडल भी बनाओ, कि जो जस्टिस है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसके लिए एक मॉडल भी प्रिपेयर करना है। तो मॉडल फॉर कोड ऑफ एथिक्स, कैसे कोड ऑफ एथिक्स को इंश्योर किया जा सकता है? आप क्या कोई मॉडल दे सकते हो? यस, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, सो लेट अस सी, देखते हैं भाई। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, राइट। अगर मैं मॉडल की बात करूं, राइट, सो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स डिसाइड करने हैं तो देखो, एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आप कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लेस टू प्लेस आप कोड ऑफ एथिक्स के कोड्स बना सकते हैं। सो डिफाइन व्हाट इज कोड ऑफ, सॉरी, नॉट कोड ऑफ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट in your organization and provide clear guidelines to avoid it। आप ये बता दीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किस चीज़ से आपको बचना है, उसके लिए क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी, विच विल मेंटेन द इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नेंस है उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाएगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, इफ़ यू आर टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर, इफ़ यू आर टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, एंड you take many policy decisions, right? So this is your code of ethics to maintain the secrecy
ऑफ दीज पॉलिसीज। ठीक है, इन पॉलिसी की सीक्रेसी को मेंटेन करना आपका काम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली क्या देखा गया, रिसेंटली मैनी सिविल सर्वेंट फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी बहुत सारे लोगों ने जो कि सिविल सर्वेंट बैकग्राउंड से थे, उन्होंने अपनी लैंड खरीदी एमपी में, एग्रीकल्चरल लैंड, फिर वहाँ से पॉलिसी के उन्हें तो मालूम थे कौन सी पॉलिसी कहाँ से क्या रोड्स निकलनी है, वहाँ से पास करवा दिया, तो उसकी वैल्यू उन्होंने करोड़ों में बना ली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी द रूल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, राइट। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आउटलाइन कर सकते हैं, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस कि कैसे रूल्स एंड लॉज फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली ऑफ कंप्लाइंग। ये मॉडल बता रहा हूं मैं, रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन द प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी का एक स्टेप ऊपर प्रॉबिटी होता है। आपको बताऊंगा प्रॉबिटी क्या होता है। क्या कोई अदर सॉल्यूशंस भी हैं? यस, अदर सॉल्यूशंस भी हैं कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉबिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जो एक क्वालिटी चाहिए सिविल सर्वेंट में, वही ज़रूरत है इन कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करने के लिए? तो आपको मैंने नोलान के प्रिंसिपल पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप इसकी ट्रिक याद कीजिए। सोहेल, SOOHAIL, सोहेल। सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। तो ये क्वालिटी अगर किसी सिविल सर्वेंट में होगी तो वो कोड ऑफ एथिक्स को ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सकते हो, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी चीज को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आप इस चीज को कंक्लूड भी कर सकते हो। अबव प्रिंसिपल have to be set in real time frame to have code of ethics and maintaining the probity, transparency and integrity in governance process, राइट। तो आज का आंसर हमारा यहीं फिनिश होता है। इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं, राइट।